Hello everybody, good evening. This is Dr. Gitanjali Sharma welcoming you back again to yet another extremely interesting sessions from Talking Textbooks Kota Live. And anyways, this is our expert team. Again, I feel very much privileged to introduce you back in again to these guys, all right? And then this is me, obviously. So anyways, you know everything about me, right? So here we go. So dekho, these are the information which are definitely to be conveyed to you again and again because यहीं से आपको access मिलता है TTB के बहुत ज़्यादा precious sample papers ka, okay, regarding your materials, your DPPs and everything. So you can just have a sneak peek at that at our Telegram handle, and then if you're interested in buying that material, then you can just visit to www.talkingtextbooks.in. लाल और नीले कलर का डिब्बा आप जो ये देख रहे हैं इसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चूज एनी ऑफ द पेमेंट मोड्स, can be credit, debit, net banking, wallets, and can opt for that. All right. So anyways, ये सारी information आपको सब लोग देते ही रहते हैं, and I know that you guys know very well, okay, and many of you have opted, and if anybody of you hasn't, then you can just go to it and buy that material. So again, the cardinal promise. See, why do we do cardinal promise? Is just for ourselves, right? We are promising ourselves that we'll be amazing students because see, पढ़ाई हम किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं, right? So we have to be honest with ourselves, isn't it, students? And I know my students are already sincere, but then just as a ritual, जैसे कि हम सुबह उठ के और सुबह उठने के बाद और सोते टाइम भगवान को प्रे करते हैं, है ना? Like I do, and I know most of you also. So following the same ritual, we'll be starting it again. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, and I know my babies are already very smart, right? So moving forward, see, लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था बच्चों उसका हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में रिविजन नहीं करेंगे बिकॉज इट्स वेरी बेसिक वी स्टडीड, राइट? सो आई विल जस्ट क्विकली स्वैप दी स्लाइड्स फॉर यू, ओके? हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, ऑल राइट? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसके लिए. माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, दैट it's a branch dealing with the study of microorganisms. Then microbes जो हैं उनकी किन properties के ऊपर हमने उनको different categories में classify किया था, right? Cellular organization, means of locomotion, morphology, structure, reproduction, right? So then the next one was the history. We got to know a very important points, like many important points about the discoveries and exactly क्या important innovations and all हमारे बहुत महान लोगों ने जिनके नाम हमने already पढ़े हैं, and you can see them here, ठीक है? जिन्होंने फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, ऑलराइट? सो हियर वी गो. देन वी सॉ सम कॉमन फीचर्स, ओके? We saw some common features about the microbes, all right, like their adaptations, their modes of reproduction, then उसके बाद like what are harmful microbes, then उनके useful like what are the uses of them, what are some useful things about microbes, are they helpful to us, then the morphology, exactly कितने types, shapes, structures कैसे होते हैं ना, so we studied about them all. Then the habitat, कहाँ पे microorganisms पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, बोले तो हर जगह घुसे होते हैं ये, ठीक है? इनफैक्ट हमारी बॉडीज में भी होते हैं, एंड वी डिस्कस्ड एन एग्जांपल ऑफ ई कोलाई, राइट? इस्चेरिचिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में होता है जो, है ना? देन पैरासिटिज्म क्या होता है, सिम्बायंस क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी. तो सिंस ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे की बॉडी पे फीड करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है? सिम्बायंस क्या होते हैं, जहां पे या सो दे विल बी योर सिम्बायंस, ऑल राइट? Just a minute, yeah,
ओके। एंड सिम्बायंट्स क्या होंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, यानी कि दोनों जो भी कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को के एसोसिएशन में दे आर लिविंग टुगेदर एंड सम और द अदर बेनिफिट बोथ ऑफ देम आर गिविंग टू ईच अदर, लाइक ई कोलाई के बारे में हमने देखा था, राइट। ठीक है, पैरासिटिज्म में हमने एग्जाम्पल लिया था प्लाज्मोडियम का, द मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। देन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में हमने एग्जाम्पल लिया था एस्चेरिचिया कोलाई। अगर किसी को याद नहीं है और इफ यू हैव मिस्ड इट देन यू कैन नोट इट डाउन राइट नाउ। इंटेस्टाइन में हमारे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसको हम लोग एस्चेरिचिया कोलाई और ई कोलाई बोलते हैं। तो हमारी इंटेस्टाइन में वो रह के हमें हेल्प आउट कर रहा है, किसमें, विटामिन के प्रोवाइड कर रहा है। विटामिन के क्या होता है बच्चों, विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ब्लड क्लॉटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, एंड इन द रिटर्न इट इज ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर इंटेस्टाइन। देन यू हैव गॉट सैप्रोफाइट्स, यानी कि जो डेड एंड डीकेइंग मैटर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द लेक्चर सेकेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर मेजर ग्रुप्स। बच्चों हमने ये पढ़ लिया था एग्जैक्टली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हिस्ट्री एंड ऑल, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोना स्टडी इज कि हाउ मेनी टाइप्स, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, लाइक यू हैव बैक्टीरिया, you have your viruses, you have protozoa, you have you have a virus, you have fungi, you have algae, right? So basically all over अगर हम बात करते हैं ना तो 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम स्पेसिफिकली 2 मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल राइट, क्या पढ़ेंगे आज हम? We'll be studying about 2 major group of microorganisms and they are your bacteria and your virus, all right? ठीक है, and obviously just a minute, yeah, ठीक है। so इनके बारे में हम पढ़ेंगे exactly इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, कुछ कुछ इनके बारे में बेसिक नॉलेज, ओके, लाइक सॉरी डोंट माइंड माई थ्रोट। सो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट साइजेस, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एग्जैक्टली क्या किस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, यू नो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। एनीवेज यस, हमारे सारे लेक्चर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, नो डाउट, ठीक है। स्टार्टिंग विद द वायरस, ओके बच्चों, वायरस तो आजकल हवा में है, कोविड जिसके बारे में हम जानते हैं, राइट, कोरोना वायरस, राइट। सो बेसिकली अगर हम एक वायरस की ऑल ओवर बात करते हैं, व्हाट इज अ वायरस? सी, वायरस जो होता है इट इज अ सिंगल सेल्ड, एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब बच्चों सबसे ज्यादा अजीबो गरीब बात इसकी ये हो सकती है, मतलब अजीबो गरीब ही है इसकी बात, ये क्या कि मतलब ना तो इसको हम लिविंग में कंसिडर करते हैं ना हम इसको डेड में कंसिडर करते हैं। इट्स लाइक ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अगर किसी लिविंग सेल के अंदर घुस जाता है तो क्या हो जाता है, ये लिविंग हो जाता है, ठीक है, और जब तक ये बाहर है इट्स डेड, इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। तो बड़ा अद्भुत किस्म का प्राणी होता है वायरस। क्या होता है? अद्भुत किस्म का प्राणी, मतलब अंदर घुस गया तो लाइव, बाहर है तो इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। सो when we talk about वायरस, ठीक है बच्चों, खतरनाक भी अगर हम बोले ना, बड़े डेंजरस टाइप के होते हैं, बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं। क्यों? बिकॉज वायरस के बारे में एक बहुत जो इसका एक बहुत अच्छा खासा एक अडेप्टेशन जो नेचर ने इसको दिया है वो ये है कि ये जिस भी सेल के अंदर घुसेगा, ठीक है, क्या होता है, जिस भी सेल के अंदर ये जाता है ये उसी का मशीनरी, देखो किसी भी सेल की मशीनरी क्या होती है, उसका न्यूक्लिक मटेरियल, ओके, उसका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ठीक है, 2 तरीके के ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, एक तो डीएनए एक आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, देन द सेकंड वन इज योर आरएनए, ओके। सो जस्ट अ मिनट, या सो डीएनए और आरएनए, ठीक है, 2 ही तरीके के हमारे क्या होते हैं बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो वायरसेस क्या करते हैं ना बच्चे लोग, दैट व्हाट इट डज इज कि जाके उस सेल की उस मशीनरी को ले लेते हैं, ठीक है, उसी को ये ऐसे दे स्टार्ट लिविंग, ओके, इनके अंदर जान कैसे भरती है, ऐसे, ओके, दे विल एंटर द लिविंग सेल एंड देन दे विल टेक अप द एंटायर मशीनरी ऑफ दैट सेल, यानी कि उसका डीएनए ये पकड़ लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसी डीएनए से ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का सेल है उसको तो यही पता है कि
एग्जैक्ट कॉपी इसने डीएनए का बना लिया तो उसको तो यही पता है ना कि ये तो हमारा अपना ही शरीर का सेल है, ओके राइट। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये एक फॉरेन मटेरियल है, इसको डिस्ट्रॉय करना है ना। और इसी वजह से वायरसेस के लिए कोई वैक्सीन या मेडिसिन नहीं होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सक्यूज मी, या सो इसीलिए वायरसेस के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बन पाती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती है, ठीक है, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये जिस सेल में जाते हैं ना उसी सेल की मशीनरी ले लेते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एनी स्पेसिफिक डिटेक्शन व्हाट इज नीडेड इज, अगर बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो रहा है, सपोज एक बैक्टीरिया, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ अ वायरस, बैक्टीरिया अगर एंटर होता है तो उसका एक सर्टेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, वो घुसेगा, उसके पास अपना जो भी मटीरियल होता है, ठीक है, जनरली बहुत प्रिमिटिव मटेरियल होता है, ठीक है, प्लाज्मिड बोलेंगे उसको, तो वो जो है वो डिटेक्टेबल होता है, यानी कि सेल्स डिटेक्ट कर पाते हैं, हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, राइट, ठीक है, तो दे डिटेक्टेड। बट यहाँ पे तो वो सेल की ही मशीनरी ले लेता है, ठीक है, तो सेल को, हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स को लगता है अरे तो अपना ही आदमी है, ठीक है, हमारे शरीर का है ना यानी कि हमारी ही बॉडी का एक पार्ट है, हमारी बॉडी का ही एक सेल है, सो उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। लेकिन वो वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करके बहुत ही चालाकी से अपना खेल खेल जाता है, राइट, उसके बाद हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कोविड कर रहा है ना, इसीलिए उसकी कोई वैक्सीन ही नहीं आ पा रही है, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्या बोलते हैं उसको, बहुत खतरनाक किस्म का वायरस है ये, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं इनके बारे में। तो सी I'll be highlighting some very important points, so you guys need to pay attention, focus on that, all right, ठीक है। viruses are submicroscopic. What are they? Submicroscopic infectious agents that can replicate only inside, only, kindly note, only inside the living cells, all right, of an organisms. That's what I told you. वो अंदर घुसेगा, उसकी मशीनरी को अपने क्या बोलते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेगा। मशीनरी क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी फंक्शनिंग होता है, कहाँ से होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ऐसा क्या स्पेशल चीज होती है जिससे कि सारा सेल जो है अपना वर्किंग कंट्रोल करता है? दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, योर डीएनए और आरएनए, ऑलराइट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, दे कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स टू खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मतलब अपनी बिरादरी वालों को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ओके, एल्गी को भी कर देगा, फंगस को भी कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्राणी है, ठीक है, बड़ा ही बदमाश टाइप का है, okay, so they can infect all life forms, infect all types of life forms, ठीक है। then they are neither living nor non living, इनको ना तो आप living बोल सकते हो, neither living nor non living, ठीक है। इसीलिए इनको very 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 important point, please note, regarded as a link between living and non living। बच्चों mark this point, this is very important, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सूचना, बहुत ही आवश्यक आप लोगों के लिए जो है एक इंफॉर्मेशन है, इज रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वाज समथिंग वेरी बेसिक अबाउट द वायरसेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, देखो, दे आर डेड व्हेन लिविंग फ्रीली इन द एनवायरमेंट, बट दे बिकम लिविंग वंस दे एंटर अ लिविंग सेल। देयरफॉर दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सी, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, क्या डिस्कस किया था बच्चों? दैट दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब तक एक लिविंग सेल के बाहर है, बेसिकली ये मान लो इनको अपने एक्शन के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है, किस पे? एक लिविंग सेल पे, है ना। खुद इंडिपेंडेंटली फंक्शन ये कभी नहीं कर सकते, बिकॉज कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, मतलब बॉर्डर मान सकते हो इसको आप, राइट। बाहर है तो इट्स डेड, अंदर घुस जाएगा ये एक लिविंग सेल के तो इट वुड बी लाइव। सो दिस इज हाउ द मशीनरी ऑफ अ वायरस वर्क्स। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनका अपना खुद का कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई एग्जिस्टेंस हम ऐसे नहीं बोल सकते until and unless they are inside a living cell, ठीक है। So do not have structural organization. Then the study of viruses is called as virology. This is important.
क्या बोलते हैं, वायरसेस को हम जिस टॉपिक के अंडर स्टडी करते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग, उस ब्रांच को हमने क्या बोला, वायरोलॉजी। ठीक है, क्या बोला हमने, वायरोलॉजी। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, सी अब जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वायरसेस जो होते हैं ना, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ओके, दिस मस्ट बी नोटेड। दूसरा ये कि ये हर किसी चीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स टू अपनी बिरादरी के लोग। अब इनकी बिरादरी कौन सी, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, एल्गी हो गया, फंगस हो गया। ऑलराइट, सो देन अगेन जिन जिन कैटेगरीज को ये इन्फेक्ट कर रहा है ना, तो उसको हम एक उन कैटेगरी ऑफ वायरसेस को हम एक अलग नाम देते हैं। जैसे कि अगर ये प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक अलग नाम है। उस कैटेगरी ऑफ वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनका नाम अलग है, ठीक है। फिर फंगस को जो कर रहे हैं उन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वायरसेस का नेम इज डिफरेंट, ओके। सो ऐसे, सो मूविंग, जो भी वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, द वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज व्हाट, वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाज। क्या बोलेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफाज। ऑलराइट, सी, तो वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियोफाज, फाइकोफाज, एल्गी को इन्फेक्ट करने वाले उनको क्या बोलेंगे, एल्गी वायरस, दैट इज फाइकोफाज। फंगाई वायरस, माइकोफाज, ओके, और माइकोफेज एज यू वांट टू से, ओके। सो देन एनिमल वायरस, एनिमल्स को जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं, जूओफाज और जूओफेज, ओके। प्लांट वायरस, प्लांट्स को जो इन्फेक्ट करते हैं, फाइटोफेज और फाइटोफाज, व्हाटएवर यू वांट टू से, ओके। नाउ द हिस्ट्री, अगेन देखते हैं कि ये जो महान क्रिएचर्स हैं, ठीक है, बड़े ही नालायक किस्म के हैं, तो इनकी हिस्ट्री क्या रही है एग्जैक्टली, ओके, इनके बारे में जानते हैं, महाशय के बारे में। सो मूविंग हियर, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस किस में डिस्कवर हुआ था, टोबैको मोज़ेक, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, दैट्स द वेरी फर्स्ट इन्फेक्टेड डिस्कवर्ड वायरस। देन किसने डिस्कवर किया था, इवानोवास्की, who is a Russian botanist in 1892 while finding the cause for मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है, यानी कि उनके गांव में या जहां भी वो रहते थे रशिया में, ये जो वायरस है इसने भाई मतलब टोबैको का जो मोज़ेक डिजीज है उसने हद मचा रखी थी। अब उनको टेंशन हो गई कि भाई ये तंबाकू के पेड़ों को होता क्या जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली कॉज क्या है इस डिजीज का। तो बस वो लग गए इसकी जांच परख करने में, और उन्होंने डिजीज को, इस डिजीज के कॉज को निकाला कि बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, एक वायरस जिसका नाम क्या दिया हमने, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या नाम दिया बच्चे, टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ बैक्टीरियोफाज वायरस, द वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया, अभी हमने पढ़ा था, राइट। बैक्टीरियोफाज वायरस क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय ट्वॉर्ट एंड डी हेरेल इन 1917, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाज डिस्कवर्ड बाय व्हाट, लाइक whom, ट्वॉर्ट in 1915 and डी हेरेल in 1917. So both of them discovered them at the different times. Are you getting my point? Moving to the next, here we go. All right, now it is important to note the structure of virus, ठीक है। हमने बताया था इनकी कोई एब्सोल्यूट जैसे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ठीक है, विल गेट टू नो आगे फर्दर क्लासेस में, बट वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, राइट। सो जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना बच्चों, वो क्या आता है यहाँ पे कि वायरसेस जो हैं दे लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, अनलाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। जो भी पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइटेड बता रही हूं ना, दे आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो एसेंचुएटेड वंस है उनके। ऑल राइट, द नेक्स्ट पॉइंट,
They're considered as the smallest known microorganism, smaller than any cell. सबसे ज़्यादा छुटंकु होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे से, है ना, ठीक है, क्या बोलेंगे, smallest known microorganisms. Yet another important point you need to note, all right, then they cannot be visualized by light microscope, therefore we use an electron microscope. ठीक है, देखो लाइट माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, उससे कुछ बैक्टीरियाज विजिबल हो सकते हैं, ठीक है, यू कैन विजुअलाइज फंगाई, एल्गी, बट देन ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इनके लिए एक और आविष्कार की जरूरत पड़ गई. कौन सी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो कौन सा आविष्कार था वो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप से ये नहीं दिख सकते. दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. अब आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है, वायरसेस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? ठीक है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? डीएनए और आरएनए. ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये तो बाकी सेल्स का मतलब जैसे जिस भी लिविंग सेल को ये में जाएंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ये उसका मशीनरी ले लेते हैं, राइट. लेकिन इनके पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है. उसका क्या बच्चों? वो जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो एक्टिवेट ही कब होता है? जब ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट करके उसकी मशीनरी ले लेते हैं. ठीक है, एंड देन दे यूज देयर ओन मशीनरी टू रेप्लिकेट. गेटिंग माई पॉइंट? उससे वो रेप्लिकेट होते हैं. ठीक है, रेप्लिकेट होते हैं, इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाते हैं और जिस भी सेल में घुसते हैं उसको तबाह कर देते हैं. ठीक है, सो देयर डीएनए और आरएनए. गेटिंग माई पॉइंट? सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट योर वायरसेस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. देखो द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. देखो ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया. ठीक है, अभी हमने देखा था, सी वायरसेस जो होते हैं ना बच्चों, वो अलग अलग जिन ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं उनकी साइज एंड शेप अलग होती है. जैसे प्लांट वायरसेस अलग दिखते हैं, देन यू हैव एनिमल वायरसेस अलग होंगे. ठीक है, फाइकोफाज अलग है, माइकोफाज अलग है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना अभी स्लाइड्स में, देखो यहाँ पे है ना, हर किसी का शेप्स एंड साइजेस जो हैं वो अलग अलग होता है. ठीक है, तो इस तरीके से अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ ना, दिस इज जस्ट अ वेरी जनरल स्ट्रक्चर. ओके, सो आपके एग्जामिनेशंस के लिए दिस वुड डू. ओके, द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस. सी यहां पे मैं मार्क कर रही हूं. सबसे पहले तो ओवरऑल एक जनरल बेसिस पे, दिस इज द हेड पार्ट और यहां से लेके यहां तक इज योर टेल. क्या है? टेल. दिस इज योर हेड पार्ट, दिस इज योर टेल. देन ये आपका हो गया योर हेड. ओके, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड. किडोज साथ साथ में इसको बनाते जाना. ओके, ठीक है, साथ साथ इसको ड्रॉ कर लेना आप लोग. ओके, नाउ सी ये स्पाइरल स्पाइरल देख रहे हो अंदर, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. दिस कुड बी योर डीएनए और आरएनए. सिंस अभी हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए में से कुछ भी हो सकता है वायरसेस के अंदर. ठीक है, सो आई होप यू कैन अप्रिशिएट इट वेल. ओके, देन दिस इज योर शीथ. ठीक है, दिस इज अ शीथ, दिस इज योर टेल फाइबर. ऑलराइट, चलो इसको बना लो फटाफट से. ठीक है, should draw this, this is important. Okay, so this is left. Yeah, so this is left. Will be, wait. This would be called as a base.
ठीक है। सी इसका ना अलग अलग बुक में आपको एक अलग अलग नाम मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन यूज इट एज अ बेस ऑल्सो, ठीक है। आप इसको बेस भी एक नाम दे सकते हो, बाकी भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इनकी मार्किंग अलग अलग होती है, सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस इट डज वेरीज। ओके, फिनिश दिस अप फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 more minute to draw. Okay, you can just add one another name. ये भी आप एक और नाम भी ऐड कर सकते हो इसमें, एंड प्लेट। ओके, सी दे बहुत सारे नाम इसको अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। सो विच एवर यू लाइक। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, आई होप इट्स डन, ठीक है। नाउ सी गाइज, वी नोटेड कि जब तक ये लिविंग सेल से बाहर है, ठीक है, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, राइट। एंड जब तक फिर जब अंदर घुस जाता है ना एक लिविंग सेल के, तो इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग बीइंग, है ना, ठीक है। सो यहाँ पे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ पे फिर अगेन आई विल बी मार्किंग सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू गाइज। ओके, सो काइंडली नोट, दे आर ए सेलुलर, ठीक है। ए सेलुलर क्या होता है, यानी कि जो जितने भी बेसिक सेल ऑर्गेनलीज होते हैं ना, जैसे सेल वॉल हो गया, ठीक है, देन यू हैव गॉट योर साइटोप्लाज्म, ओके, सेल ऑर्गेनलीज, दे आर एब्सेंट, ओके, सो दे आर ए सेलुलर। सिंस आई टोल्ड यू कि इनमें एक बेसिक स्ट्रक्चरल जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एब्सेंट होता है, ओके। सो ए सेलुलर, इनमें कुछ भी मेटाबॉलिज्म खुद से कैरी आउट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि रेप्लिकेट कौन कर सकता है, लिविंग सेल्स। लेकिन जब ये एक लिविंग सेल के बाहर हैं तो दे आर कंसिडर्ड डेड, राइट। सो दे कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, अपना कोई भी मेटाबॉलिज्म ये कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए इनको एक लिविंग होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। सो दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन एंड रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी, ओके। इन अदर वर्ड्स, वायरसेस डू नॉट ग्रो एंड डिवाइड। लेकिन यहाँ पे एक क्या सिचुएशन है, वायरसेस डू नॉट ग्रो और डिवाइड आउटसाइड, वायरसेस डू नॉट ग्रो एंड डिवाइड कहाँ, आउटसाइड द सेल और व्हेन लाइंग फ्रीली, ठीक है, वैसे करता है। इसीलिए इनका नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इनका नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट दे डू नॉट ग्रो और डिवाइड, दे रिक्वायर अ लिविंग होस्ट सेल टू परफॉर्म नियरली एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि जब, इसीलिए हम लोगों ने इनको डेड बोला ना, जब ये लिविंग सेल के बाहर है, अंदर आएगा तो सारा मेटाबॉलिज्म कर लेता है, बाहर है तो कुछ भी नहीं करता। भाई एक डेड कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, दे कैन नाइदर रेस्पायर, ओके, नॉर कैन दे डिवाइड रेप्लिकेट, मतलब कि कुछ भी नहीं, ठीक है। सो वही यहाँ पे कैरेक्टर्स एक वायरस एग्जिबिट कर रहा है। नाउ द लिविंग कैरेक्टर्स, वंस अ वायरस, ओके, अ वायरस सेल इट एंटर्स इनसाइड अ लिविंग सेल, ओके, तो उसका होस्ट, ठीक है, जिसकी वो मशीनरी लेता है, तो फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, दिस वुड बी नोटेड हियर, ठीक है। क्या क्या चेंजेस, दे कैन म्यूटेट एंड चेंज कैरेक्टर्स, राइट, म्यूटेट कर देते हैं, यानी कि अपने जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि अभी कोविड है, ठीक है, उसका वैक्सीन क्यों नहीं आ पा रहा, बिकॉज बार बार म्यूटेशंस दे रहा है वो। म्यूटेशंस किस लेवल पे, म्यूटेशंस यानी कि चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चरल यू कैन से मशीनरी, राइट, उसी में चेंजेस, अपने डीएनए में ही चेंजेस लगातार ले आते हैं। ऐसे ही कोविड के साथ हो रहा है ना, क्योंकि कंटिन्यूस वो वायरस इतना ज्यादा म्यूटेट कर रहा है, अपने जो उसका जेनेटिक मटीरियल है, ओके, उसमें इतनी ज्यादा वो चेंजेस ला रहा है कि मतलब अब उसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हम लोग, ठीक है। एग्जैक्टली पॉइंट आउट करेंगे तो किसको करेंगे, राइट। सो उनके पास ये बड़ा ही ज्यादा यू कैन से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वायरस के पास, इसलिए दे आर वेरी खतरनाक कि दे कैन म्यूटेट
and change characteristics. All right, they contain genetic material either DNA और RNA, क्योंकि हर एक लिविंग सेल के पास होता है एक जेनेटिक मटीरियल अपना, ठीक है, इनके पास भी होता है. ओके, ये हमने पढ़ा था. दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, हीट, केमिकल्स एंड रेडिएशंस. ओके, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ओके, लेकिन कब? जब ये एक लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं, बिकॉज दीज आर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस. ओके, दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ डिजीज्ड होस्ट टू हेल्दी सेल्स, स्प्रेडिंग इन्फेक्शन. सो ये इन्फेक्शन भी स्प्रेड करते हैं, क्योंकि एक बार घुस गए ना लिविंग सेल में, उसके बाद तो फिर ये तहलका मचा देते हैं. ठीक है, they can replicate inside the host cell and produce copies of themselves. जैसा मैंने बताया, उसका मशीनरी लिया, उसके बाद ये अपने जो जेनेटिक मटेरियल है कंबाइन करके वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. ऐसे ही तो इन्फेक्शन फैलाते हैं बॉडी में, है ना. देन दे शो इरिटेबिलिटी. ठीक है, इरिटेबिलिटी, they exhibit a characteristic of irritability. ठीक है, if we try to disturb them a little bit, ठीक है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है. ठीक है इस तरीके से. ऑल राइट, ठीक है. नाउ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस. भाई खतरनाक आदमी है ये. ठीक है, तो काफ़ी तरीके की हमारे अंदर बीमारियां भी फैलाता है, नो डाउट. ठीक है, जैसे अभी जो करंट चल रहा है, हर जगह कोविड ही चल रहा है, राइट. ठीक है, तो सिमिलरली नाउ लेट अस लुक कि क्या क्या डिजीजेस ये फैला सकते हैं. देखो बच्चों, वायरसेस जो हैं, जैसा मैंने बताया आपको, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं ना, प्लांट्स के, फंगस के, एल्गी के एंड ऑल. सो एग्जैक्टली वो वायरसेस को हम मतलब हर एक में क्या डिफरेंट वो डिजीज कॉज कर रहा है, राइट. सो वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे. वायरसेस कैन प्रोड्यूस डिजीजेस इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा हमने पढ़ा था, है ना. सो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एक्सेट्रा, ये वायरल डिजीजेस होते हैं सारे. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स. ठीक है, यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, यहाँ पे यू कैन ऑलवेज लुक फॉर दीज एग्जाम्पल्स. कौन कौन से? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एक्सेट्रा. ठीक है, देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्लांट्स में कौन कौन से करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स किसके लिए, ये तो हमने ले लिए. यहाँ पे हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स किसके ले लिए, जस्ट अ मिनट. हाँ, ठीक है, यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल्स ले लिए. फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे ह्यूमंस का ले लिया. ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया ये प्लांट्स का. ठीक है, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए, एनिमल्स के. ठीक है, प्लांट्स में, ह्यूमंस में क्या कर रहा है, प्लांट्स में क्या कर रहा है, एनिमल्स में ये क्या कर रहा है. ऑल राइट, ठीक है. तो देखो, कुकुम्बर मोज़ेक, पोटैटो मोज़ेक, वायरसेस प्लांट्स में. ठीक है, कुकुम्बर में, पोटैटो में, ठीक है, उनमें ये डिजीजेस फैलाता है ये वायरस. ओके, देन रेबीज, रिंगवॉर्म. ठीक है, ये डिजीजेस किस में होता है, एनिमल्स में, एंड सो ऑन. तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे. ऑल राइट, मूविंग नेक्स्ट, नाउ कम्स बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते. देखो, अनदर कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो बैक्टीरिया, यहाँ पे भी सिमिलरली आई विल हाईलाइट, मार्क सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, उस पर हम फोकस करेंगे. बैक्टीरिया अगेन बच्चों क्या होता है, सिंगल सेल्ड. ओके, और बहुत बहुत मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं ये. ठीक है, हर जगह मिल जाते हैं आपको, सॉइल में, वाटर में, वोल्केनो में, मतलब एक भी ऐसी जगह नहीं है, इनफैक्ट ह्यूमंस के अंदर भी. ठीक है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना. मतलब हर जगह जो है ये आपको मिल जाते हैं. बहुत बहुत ज़्यादा टाइनी क्रिएचर्स होते हैं. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं ये. ऑल राइट, है ना. एंड लाइक ऐसा माना जाता है बच्चों कि बैक्टीरियाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरी फर्स्ट टू अपीयर ऑन द अर्थ अराउंड 4 बिलियन ईयर्स पहले. ठीक है, सो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या है, सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं. ठीक है ना, बाहर भी मिल सकते हैं तो अंदर भी हमें मिलते हैं. They thought to have been the first organisms appearing on the earth about 4 billion years ago. First organisms, ठीक है, to appear on the earth. Size देखो, मतलब ये 0.2 to 2 माइक्रोमीटर तक की साइज में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, कितना,
0.2 to 2 माइक्रोमीटर और लाइट माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं. नाउ दीज आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने आपको हाईलाइट किया है, ठीक है. सो यू नीड टू नोट दीज पॉइंट्स स्पेशली. ओके, अब इनको जो है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी आता है आपका कि आप ना तो इनको प्लांट्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, ना इनको हम एनिमल कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है ना. सो एग्जैक्टली जैसे आगे आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी में, ठीक है, तो वहाँ पे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ अलग अलग क्लासेस, स्पीशीज, किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है. तो ये हम आगे पढ़ेंगे. बट अगर हम लोग एक बहुत जनरल बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो है ना तो उनको हम प्लांट्स कंसिडर करते हैं और ना ही हम उनको क्या कंसिडर करते हैं एनिमल्स में, ठीक है. लेकिन हाँ, दे आर मोर कंसिडर्ड टू बी belonging to more towards or inclined more towards the plant sector. क्यों? Because they are such living cells जिनमें की cell wall होता है ना. Cell wall is a characteristic feature of plant cells. All right, ठीक है. जो भी organisms थोड़ा बहुत जो है slightly plant sector को belong करते हैं, यानी कि plant side ज़्यादा उनका development मान सकते हो towards that end, ठीक है ना. तो उनको सबको सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है. नाउ दे आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, बट सिंस दे हैव अ सेल वॉल दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड मोर with the plants than animals, ठीक है. They could be found in almost every ecosystem of the earth, such as soil, water, your radioactive waste, ठीक है, volcanoes. Then some bacteria are harmful, but most serve a useful purpose. That is very important, ठीक है. This point must be noted. इसको हम अच्छे से highlight करेंगे. ये point बहुत important है that some bacteria, okay, not this one. बच्चों कुछ बैक्टीरिया जो है, हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी इस चीज़ के, ठीक है. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है. लेकिन काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बहुत यूजफुल पर्पस भी सर्व करते हैं हमें. ओके, अगेन लेट मी जस्ट but most of serve as a useful purpose. This is an important point, ठीक है. They support many forms of life, both plants and animals, and are also used in industrial processes, ठीक है. Industrial processes में भी use होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें fermentation, ठीक है. fermentation क्या, शुगर से अल्कोहल का प्रोडक्शन, ठीक है. तो इस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरियाज, है ना, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. देन उसके अलावा आपके बाकी जो है प्रोडक्शन ऑफ योर चीज़, कर्ड एंड ऑल, हर किसी चीज़ में जो है बैक्टीरिया यूज़ होते हैं. सो ये कैन से हार्मफुल भी हैं तो यूज़फुल भी इनके काफ़ी यूजेस होते हैं, ठीक है. अब बच्चों हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है. अब देखो बैक्टीरिया अपने आप में पूरी एक अच्छी खासी कम्युनिटी है ना. लेकिन अब इनके भी क्या होता है ना, डिफरेंट कैटेगरीज हैं. लाइक वी हैव डिवाइडेड इट फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, राइट. अब सबसे पहला तो उसमें डिवीजन किस बेसिस पे आता है, शेप्स के बेसिस पे, ठीक है. अब आप यहाँ पे यू कैन इजीली मेक आउट कि देखो कितनी सारी शेप्स जो हैं इस बैक्टीरिया की, एक बैक्टीरिया की हो सकती है. सी यू हैव गॉट कॉकाई, यू हैव गॉट बेसिलाई, देन यू हैव गॉट अदर्स, है ना, यानी कि स्पाइरल. सी कॉकाई इस तरीके से, राउंड 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 इस तरीके से, दीज आर कॉकाई और कॉकस. इसको अगर ज्यादा ग्रुप में है तो आप क्या बोलोगे, कॉकस. लाइक एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है. यू हैव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो कॉकस जहां भी आ रहा है उनका क्या है, शेप इज व्हाट, दिस राउंड राउंड, ओके, इस तरीके का. देन यू हैव गॉट बैसिलस, ठीक है, बैसिलाई, यानी कि इस तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म, इस तरीके, रॉड शेप्ड, ओके. कैसे शेप्ड, यू हैव गॉट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ओके. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है. यू डिड नॉट नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स एज फॉर नाउ, बट इनकी शेप्स पे आप फोकस कीजिए. ऑल राइट. देन यू हैव स्पाइरल, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है जिन बैक्टीरियाज का, लाइक स्पाइरोशीट्स हियर, Treponema pallidum, okay. So Coccus bacillus you have spiral, okay. इस तरीके के अलग अलग shapes बैक्टीरिया exhibit करता है. Moving to the next, you've got, okay,
Yeah, so anyways, this is the most important part here. As for now we've got much more classifications, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें included हैं, ठीक है, but that all we'll be covering in the next lecture, ठीक है. So this was the very basic about the entire about your virus, okay. वायरस के बारे में जो भी important था वो सब यहाँ पे हमने cover कर लिया है. बैक्टीरिया का जो remaining portion है that we'll be covering in the sections later. So as for now, if you like this video, please do hit that like button, okay, subscribe to the channel of Talking Textbooks, and also share this video with your friends. Hope it helps to them as well, of course to you, okay. And yes, as for now, अलविदा लेंगे हम आपसे. So thank you, take care, bye bye.